یہ ہیں موروکو نام کے دنیا کے ایک مشہور مسلم دیش کے راجا، جن کا نام ہے سید محمد بن الحسن۔ ان کے خاندان کے دعوے کے مطابق یہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل میں سے ہیں، مطلب ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ مگر ساتھ ہی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے بہت پکے دوست بھی ہیں، اتنے پکے دوست کہ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کا اتنا پکا دوست تو مسلم دنیا تو چھوڑیے بلکہ آج کل تو شاید ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی کوئی لیڈر نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ موروکو کے ان کنگ کو عام طور پر ایک زائونسٹ مسلم لیڈر بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کو آج اچانک سے ان کی یاد کیوں آ گئی؟ تو ساتھیوں، بات یہ ہے کہ یہ راجا پچھلے 2-3 دن سے کچھ زیادہ ہی چرچاؤں میں ہیں، اور اس کی وجہ ان کا موروکو دیش ہے، کیونکہ موروکو دیش کی وجہ سے ہی پچھلے 2-3 دن سے پورے یورپ میں اور خاص طور سے اسپین کے اندر کوہرام مچا پڑا ہے۔ اسپین میں ایک آگ لگی پڑی ہے کہ جس آگ نے اسپین اور یورپ کے پورے سسٹم کو ہلا رکھا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی اسپین ہے کہ جو پچھلے کچھ سالوں میں فلسطینیوں کا حمایتی بننے میں، ان کو سپورٹ کرنے میں دنیا کے اندر سب سے آگے نظر آیا ہے۔ اتنا آگے کہ جتنا یورپ تو چھوڑیے بلکہ مسلم دنیا کا بھی کوئی دیش نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانو اسرائیل اور امریکہ جیسی طاقتوں نے اپنے دوست موروکو کے ساتھ مل کر اسپین کو اپنے کیے گئے انہی کاموں کی سزا دینے کا یا اس کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آگے کی بات سمجھنے سے پہلے آپ ذرا ان تصویروں اور یہ اسپین کے علاقے سے آنے والے کوئی معمولی تصویریں نہیں ہیں، بلکہ یہی تو وہ نظارہ ہے کہ جس کی وجہ سے پورے ویسٹرن ورلڈ میں کوہرام مچا پڑا ہے۔ آلریڈی کئی لوگوں کی موتوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسپین نے اپنے یہاں پر ایمرجنسی جیسے حالات پیدا کر دیے ہیں، اور تو اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اپنی آرمی تک کو اتار ڈالا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ جو پوری بھیڑ نظر آ رہی ہے، یہ کوئی اسپین کی نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ تعداد میں 50 یا 60 ہزار کے قریب بتائے جا رہے ہیں، یہ یا تو زیادہ تر خود موروکو دیش کے ہی ہیں یا پھر باقی جو افریقہ کے دیش ہیں ان سے بلونگ کرتے ہیں۔ اور ان سارے ہی لوگوں نے مطلب جو کہ 50 سے 60 ہزار کے قریب تھے، ایک ہی بار میں موروکو کے بارڈر پر دھابا بولا، موروکو کے بارڈر کو کراس کرتے ہوئے اسپین میں گھس گئے ہیں۔ ویسے تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ یورپ میں آلریڈی انلیگل امیگرینٹس کا مسئلہ بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پر آج کل زیادہ تر پالیسیز بھی امیگریشن کو دیکھ کر ہی بنائی جا رہی ہیں۔ ایون بہت سارے لوگ تو الیکشن بھی اسی مدے پر جیت کر آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اچانک سے اتنی بڑی سنکھیا میں ایک ہی بار میں بارڈر کو کراس کر کے اسپین میں افریقہ کے لوگوں کا گھس جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کلیئر ہے کہ ان میں سے ہر انسان کا مقصد ہی یورپ پہنچنا ہوگا، مگر یورپ میں جا کر کرنا کیا ہے اس کو لے کر ہر انسان کا اپنا موٹو ہوگا۔ کوئی تو اپنے دیش کے کرپٹ سسٹم سے پریشان ہوگا اور وہاں بس کسی طریقے سے انلیگل پہنچ کر پیسہ کمانا چاہتا ہوگا، جبکہ آدھے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اپنے علاقے میں کرائم کرتے ہوں گے اور وہاں پر جا کر بھی کرائم کریں گے، کیونکہ یہی تو وہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ جو پچھلے کچھ سالوں سے یورپ کی پوری سوسائٹی فیس کر رہی ہے۔ اب یورپ کا یہ جو بڑا امیگریشن کا ایشو ہے، یہ تو اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے، مگر یہاں پر آپ لوگوں کے دماغ میں 3 سوال ضرور پیدا ہو چکے ہوں گے۔ پہلا سوال تو یہ کہ اگر یہ اسپین میں گھسے ہیں تو باقی یورپ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ موروکو اور اسپین کے بیچ میں تو چھوٹا ہی صحیح مگر سمندر موجود ہے، تو آخر موروکو سے 50-60 ہزار لوگ اسپین میں کیسے انٹر کر سکتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت پر یا پھر ایک ہی دن میں یہ جو اتنا بڑا نمبر ہے، مطلب کہ 50-60 ہزار لوگ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم کو ایک ساتھ ہی موروکو سے اسپین میں گھسنا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے انلیگلی ایک دیش سے دوسرے دیش میں انٹر ہونے کا مسئلہ تو دنیا کے باقی حصوں میں بھی ہے، مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ بہت چھوٹے لیول پر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دیش کے بارڈر پر ہی بڑے لیول پر آرمی کھڑی ہوتی ہے یا پھر
सिक्योरिटी के बड़े इंतजामात होते हैं। आखिर इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि 50-60 हजार लोग एक ही बार में इलीगली एंटर कर जाएं? तो आपके पहले सवाल का जवाब तो बड़ा ही सिंपल है कि क्योंकि यूरोप इस तरह से ऑपरेट करता है कि अगर आपने फ्रांस के अंदर जन्म लिया है तो समझ लीजिए कि आप बाकी सारे देशों के अंदर भी बिना किसी वीजे के ही जा सकते हैं। मतलब बाकी सारे देश आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए दूसरे शहर होते हैं। इधर उधर जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप लोग वहाँ के किसी देश में पैदा तो नहीं हुए हैं, मगर किसी देश का अगर आप लोगों ने वीजा ले लिया है तब भी आपके ऊपर सेम रूल ही अप्लाई होगा। मतलब उस वीजे के थ्रू आप फिर हर कंट्री में घूम सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मानो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। यही वजह है कि इस मामले को लेकर जितना परेशान स्पेन है उतना ही परेशान बाकी यूरोप भी है। अब आपको दूसरे सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमारी दुनिया के मैप को देखना पड़ेगा। दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है मोरक्को और यहाँ पर मौजूद है स्पेन, और हाँ इन दोनों के बीच पतला ही सही मगर एक समुद्र मौजूद है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा शहर मौजूद है कि जिसको सियोटा कहा जाता है। ये वैसे तो अफ्रीकन महाद्वीप में मौजूद है, मोरक्को से बिल्कुल लगा हुआ है बल्कि जुड़ा हुआ है, मगर कागजी तौर पर देखा जाए तो ये मोरक्को का नहीं बल्कि समुद्र के उस पार मौजूद स्पेन का पार्ट है। जी हाँ, ये स्पेन के अंदर आता है और यही वो जगह भी है कि जहाँ पर वो 50 से 60 हजार लोग इलीगली एंटर कर चुके हैं कि जो मोरक्को का बॉर्डर छलांग कर आए हैं। वो सारे फोटोज, वो सारी वीडियोस के जो पिछले 2-3 दिन से मीडिया और सोशल मीडिया पर हर तरफ नजर आ रही हैं, वो सारे के सारे इसी जगह की हैं। बड़ी तादाद में होने वाली मौतों की जो खबरें आ रही हैं वो भी दरअसल इसी जगह से आ रही हैं। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भले ही ये स्पेन का पार्ट है, स्पेन के अंदर आता है, मगर आखिर है तो ये भी समुद्र के पार, तो भला ये समुद्र की मेन लैंड तक कैसे पहुंचेंगे? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये हजारों लोग के जो इलीगली यहाँ पर घुस आए हैं, ये भले ही अभी भी यूरोप को देखते हुए समुद्र के पार हों, मगर क्योंकि ये इलाका स्पेन का ही पार्ट है तो इसीलिए यहाँ पर आ जाने वाले लोगों के ऊपर भी स्पेन का रूल चलता है। आसान जबान में आप इतना समझिए कि अगर एक बार ये तमाम लोग किसी तरीके से आपस में यहाँ पर घुल मिल लिए या इधर उधर छिप छिपा गए तो बाद में फिर बड़े ही आसानी के साथ बिना किसी पासपोर्ट के बस या फिर बोट के जरिए से मेनलैंड स्पेन में भी जा सकते हैं। क्योंकि जब ये स्पेन का पार्ट है तो मेनलैंड स्पेन जाने के लिए इनको किसी भी वीजे की जरूरत नहीं होगी, और अगर एक बार आसानी के साथ वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो फिर जाहिर है पूरे यूरोप में कहीं भी चले जाएंगे। अब बारी आती है हमारे तीसरे और सबसे अहम सवाल की कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ही वक्त पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने मोरक्को के बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करके स्पेन में घुसने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों यहीं से एंट्री होती है फिर बड़े पॉलिटिकल गेम की। जी हाँ, पिछले 2-3 दिन से ये जो कुछ भी स्पेन के अंदर हो रहा है इसको लेकर यूरोप और अमेरिका में ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये सब कुछ इत्तेफाक से नहीं हो रहा है बल्कि इसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है। बात यह है कि पिछले 2-3 सालों में इजराइल को जिस लेवल पर क्रिटिसाइज स्पेन ने किया है इस लेवल पर किसी ने नहीं किया है। जिस वक्त गाजा वॉर चल रही थी उस वक्त चाहे स्पेन के मेन लीडर हों या फिर स्पेन से जुड़े हुए बाकी आम और खास लोग हों, सभी बिल्कुल खुलकर इजराइल का विरोध कर रहे थे। इस लेवल का विरोध के जिस लेवल का वेस्टर्न वर्ल्ड में तो दूर दूर तक नजर भी नहीं आता है। स्पेन ने न सिर्फ इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे बल्कि स्पेन और आयरलैंड जैसे ही वो देश थे कि जिन्होंने सबसे पहले आगे बढ़कर फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया था, जिसके देखा देखी ही फिर मजबूरी में बाकी वेस्टर्न पावर्स ने भी एक एक करके फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था। इवन अभी कुछ महीने पहले भी जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके एक नई जंग का आगाज किया था तब भी यूरोप के अंदर सिर्फ इकलौता स्पेन ही था कि जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने डटकर खड़ा हो गया था और लाख प्रेशर के बावजूद भी अपने देश के आसपास का इलाका या अपने देश की जो टेरिटरी है उसको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया था। बावजूद इसके कि इस मामले पर डोनाल्ड ट्रंप को मीडिया के सामने गुस्से से लाल देखा गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार स्पेन के लीडर को धमकियां भी दी थी। तो अब थ्योरी ये है कि इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इजराइल और अमेरिका ने स्पेन को सबक सिखाने का फैसला किया और अपने दोस्त या ये कह सकते हैं कि एक ऐसा देश के जो इजराइल और अमेरिका के ऊपर डिपेंड है मतलब कि मोरक्को, उसको खुफिया तौर पर कहा कि वो अपने बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है उसको ढीला कर दे और एक ही बार में 50 से 60 हजार लोगों को उस तरफ धकेल दे ताकि किसी तरीके
से स्पेन के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स की एक आंधी पैदा हो जाए। वैसे दोस्तों, स्पेन के अंदर जब ये सब कुछ हुआ तो बहुत कम वक्त के अंदर ही यूरोप के जॉर्जिया मेलोनी जैसे जो कुछ राइट विंग के लीडर्स हैं, उनकी तरफ से जिस तरह का रिस्पॉन्स आया वो भी शक पैदा करता है। वो इसलिए क्योंकि इस मैटर पर शुरुआत में ही इन लोगों ने ऐसा कुछ लिखने की बजाय कि हम अभी इस मामले पर नजर रख रहे हैं या इस मामले में स्पेन की मदद करेंगे, डायरेक्ट वार्निंग या फिर ये कहिए कि धमकी के तौर पर ये लिखा कि स्पेन को उस सिस्टम से ही अलग कर देना चाहिए कि जिस सिस्टम के तहत यूरोप के तमाम देश एक दूसरे के देश में बिना वीजे के ट्रैवल करते हैं, जिससे ये महसूस होता है कि मानो स्पेन को पहले ही बाकी यूरोप से अलग थलग करने का मन बनाया जा रहा है या फिर मन बनाया जा चुका है। साथियों, यहाँ पर एक और दूसरी थ्योरी भी चल रही है और वो ये है कि शायद मोरक्को लॉन्ग टर्म में इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतों की मदद से ये जो स्पेन का खास इलाका है इस पर कब्जा ही करना चाहता है। आपको अगर नहीं पता है तो बताते चलें कि मोरक्को के नीचे का एक इलाका है कि जिसको वेस्टर्न सहारा कहा जाता है, जिसको एक लंबे वक्त से मोरक्को ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, मगर इंटरनेशनल कानून के हिसाब से वो इलीगल है, वो ऑक्यूपेशन है। तो उस इलाके को लीगली मोरक्को में मिलाने के लिए पहले ही इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतें मोरक्को की मदद कर चुकी हैं। इजराइल और अमेरिका वेस्टर्न सहारा के ऊपर मोरक्को का कब्जा पहले ही जायज ठहरा चुके हैं, वो भी अब्राहम अकॉर्ड के बदले में, मतलब मोरक्को के इजराइल से दोस्ती करने के बदले में। बिल्कुल ऐसा ही कोई पैतरा हमको यहाँ भी नजर आ सकता है और उसके पीछे का रीजन ये है कि क्योंकि मोरक्को और स्पेन के बीच में भी बिल्कुल वैसी ही एक कीमती स्ट्रेट मौजूद है कि जैसी स्ट्रेट ईरान के पास मौजूद है जो आजकल चर्चाओं में रहती है, मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये जो स्पेन और मोरक्को के बीच में है इसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि इस स्ट्रेट के एक तरफ तो स्पेन खुद मौजूद है ही, दूसरी तरफ उसका ये छोटा सा इलाका भी है, तो इसीलिए वो जब चाहे जैसे चाहे इस स्ट्रेट को कंट्रोल कर सकता है और वक्त आने पर ब्लॉक भी कर सकता है। मगर अगर ये दूसरी तरफ वाला छोटा सा जमीन का टुकड़ा स्पेन के हाथ से निकल जाए तो वो एक तरफ से पूरी तरीके से गायब हो जाएगा और इस वाली साइड में सिर्फ मोरक्को बचेगा, वो मोरक्को के जहाँ पर इजराइल और अमेरिका जब चाहे जैसे चाहे आ जा सकते हैं। और ऐसी सूरत में फिर उस स्पेन के लिए इस स्ट्रेट को कम्प्लीटली ब्लॉक करना या कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा कि जो स्पेन पिछले कुछ सालों से लगातार एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल तेवर दिखाता आ रहा है। अब स्पेन की जमीन पर पैदा होने वाली इस बड़ी मुसीबत का हल क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या इन तमाम चीजों के पीछे दुनिया की बड़ी ताकतों का हाथ था और अगर था तो उनका क्या मंसूबा था, ये सारी ही चीजें आने वाले वक्त में ही पता चलेंगी। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की जो भी कीमती राय हो वो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।